नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्तावित कुकरेल नाइट सफारी पार्क और जू का प्रस्तुतिकरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य हर हाल में जून 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं नाइट सफारी व जू के लिए वन्यजीवों के लाने की समुचित व्यवस्था प्रारंभ कर दी जाए। और रूस के मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट, फिलोसोफर और राष्ट्रपति पुतिन के गुरु कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन इन दिनों भारत में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, भारत और हिंदुत्व से वो काफी प्रभावित हैं। भारत और पीएम मोदी को लेकर दुगिन के क्या विचार है, पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की गहरी दोस्ती के मायने दुनिया के लिए क्या है, ऐसे तमाम मुद्दों पर पुतिन के ब्रेन और गुरु कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन से साधना के चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय गुरु भी कह सकते हैं, और इस समय रशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनके ये गुरु हैं। सर, you have said about Gita today. You spoke many words about Gita. So, and sir, likewise I can say, like in Gita it is written, "Karm kar, phal ki ichha mat kar." So President Putin, the way he's treating the country, as well as now he wants to unite the big nations, how do you take it as why other countries are not being included? You said as China, Russia and India. So why other countries are not there? Islamic world should find its own place how to participate in the creation of multipolar world. But it is not fully integrated. It is not integrated at all. So it is delayed participation. But we need to accept, to include in this multipolar system all actors, all peoples. We shouldn't forget anybody. So we should promote African unification and Africa independent and integrated Africa as another pole. We need to help to Latin America to unify, to integrate in spite of all problems. So we need to promote multipolarity as open, inclusive project for everybody. So, but we could not speak about everything in one lecture. So I prefer to concentrate on the studies that are already here. So one last thing, sir. As Narendra Modi ji, the Honorable Prime Minister of our country, since from 2014 he's being charged over here as a Prime Minister, and he also sometimes not talks about Hindutva, but he does the work like for Hindutva as well as for the tradition. You said about many good things about tradition also. Sir, in Hindi, if you could say anything about Sri Narendra Modi ji. So, Hindutva is the core identity of Indian civilization. So, but I think it should be so inclusive as Indian identity is inclusive. So, I think that there are different interpretations of Hindutva, some of them nationalistic and some other traditionalist. So I prefer my more traditionalist interpretation of Hindutva, inclusive one, and maybe less egalitarianistic, much more in favor of Vedic and Varnas tradition, in the line of Bhagavad Gita and this Ananda Kumaraswamy and other figures of Indian Hindutva traditions. Sir, any words, any Hindi words about Sri Narendra Modi ji? You would like to say anything in Hindi, sir, for Narendra Modi ji? My nephew. You would like to say anything about Sri Narendra Modi ji in Hindi, sir? Tall guy. I think he is a great leader. He could now his spiritual dimension and his real transcendental identity is becoming more and more transparent. Thank you, sir.
और वहीं देश में चुनाव का माहौल है। जहां कई राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो वहीं कई राज्यों में उपचुनाव का भी दौर है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी ने ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं की। आपको बता दें, सीएम योगी ने 13 दिन में 37 जनसभाएं की और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रोड शो कर वोट की अपील की। सीएम योगी ने यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया। इस चुनाव में प्रचार के समय सबसे ज्यादा डिमांड सीएम योगी की रही है। तो देखिए, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसी के साथ साथ उपचुनाव भी हो रहे हैं। यूपी में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए लगातार मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और इसी के साथ झारखंड में भी देखिए विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मांग है, जो डिमांड है, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। विधानसभा उपचुनाव के लिए भी लगातार जो है सभी पार्टियों ने जोर लगा दिया है। इस बीच आपने देखा कि अखिलेश यादव ने भी जो है रैली की और तमाम बातों का जिक्र किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर ले तो वो भी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, भगवान बिरसा मुंडा और लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती, अटल जी की जन्म शताब्दी और आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर विविध आयोजन होंगे। और वहीं संविधान दिवस को सभी सरकारी संस्थानों, विभागों, कार्यालयों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का वाचन करते हुए ली जाएगी। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ मेला परिसर में संविधान गैलरी तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि जनजातीय समाज के गौरव प्रदर्शित करने जनजातीय गैलरी भी खास होगी। तो लखनऊ से तस्वीरें दिखा रहे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली है। इसी के साथ अधिकारियों को कई दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। तो वही संविधान दिवस को लेकर तैयारी भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें तमाम अधिकारी शिरकत हुए। अधिकारियों को मुख्यमंत्री उचित दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। देखिए, संविधान दिवस के लिए तमाम तैयारियों के लिए भी मुख्यमंत्री बात करते हुए नजर आए और इसी के मद्देनजर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। महत्वपूर्ण बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक ली गई है। इसकी अध्यक्षता खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। और खबर गांधीनगर से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन में शिरकत की। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, जिनके निमंत्रण पर हम सब यहां एकत्र आए हैं, बीपीआरएनडी के डीजी श्री राजीव कुमार शर्मा जी, श्री विकास सहाय, गुजरात के पुलिस प्रमुख डॉक्टर बिमल भाई, जो हमारे एक प्रकार से होस्ट भी है और ये कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, सी रवि जोसेफ लोकू जी, एडिशनल डीजी बीपीआरएनडी, और आज 50वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मीडिया के मित्र जरा सेट कर बैठ जाओ, मैं यहीं रहूंगा, हिलूंगा डुलूंगा नहीं, आराम से जरा बैठ जाइए। मित्रों, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के अंदर हिस्सा ले रहा हूं।
जब मैं पहली बार लखनऊ अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में हिस्सा लेने के लिए मैंने हाँ बोला, तब एक उच्च पदस्थ अधिकारी का एक टिप्पणी था जो हम सबने बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने बीच में 3 वर्ष 3 सम्मेलन में इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि मैं खुद वो टिप्पणी को समझना चाहता था और इसका धरातल पर क्या सच्चाई है वो भी जानना चाहता था। उन्होंने मुझे कहा था कि साहब धीरे धीरे अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कर्मकांड बनकर रह गया है, मीटिंग का बहाना मात्र रहा है। इन्होंने इसके मूल उद्देश्यों पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। मैं 4 बार, आज चौथी बार आया हूं। आज का एजेंडा भी मैंने डिटेल पढ़ा है। एजेंडा तैयार करने में भी, उसके पहले भी मैंने बीपीआरएनडी से चर्चा की है। मैं ये जो ग्रॉस स्टेटमेंट था इसको सिरे से नकार नहीं रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस इसके अलावे हमारी पुलिसिंग की सिस्टम को, हमारी सुरक्षा व्यवस्था को आज के जमाने में रिलेवेंट रखना संभव ही नहीं है। इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ये कर्मकांड नहीं है। परंतु साथ में यह भी सही है कि 50 साल से चलते चलते देश, दुनिया, अपराध जगत और पुलिसिंग, इसमें इतने सारे परिवर्तन आ गए। इसके हिसाब से पुलिस विज्ञान कांग्रेस का स्वरूप बदला है क्या, इसको ध्यान से देखते हैं तो वो महाशय की बात थोड़ी सच लगती है। क्योंकि पुलिस विज्ञान कांग्रेस ये पूरी हमारी अपराध के खिलाफ लड़ने की सिस्टम को रिलेवेंट रखने की एक्सरसाइज है। कहने को तो 250 लोग इस सभागार में बैठे हैं, मगर जो उद्देश्य है उसका, वो पूरी सिस्टम को रिलेवेंट बनाने का है। और जब ये दायित्व पुलिस विज्ञान कांग्रेस पर हो तो हमने नए सिरे से इसके स्वरूप, इसकी सहभागिता, इसके इनपुट लेने की पद्धति और अनुसंधान और विकास दोनों शब्दों को पुलिस स्टेशन से भी नीचे बीट और कांस्टेबल तक पहुंचाने की व्यवस्था, ये इसको समग्रता से पुनर्विचार करने का समय आ गया है। अच्छा ही है आज गृह सचिव महोदय यहां पर बैठे हैं। मेरा गृह सचिव महोदय से आग्रह रहेगा कि बीपीआरएनडी के डीजी, गृह सचिव महोदय और इसके सारे स्टेक होल्डर मिलकर एक मनोमंथन चिंतन पुलिस विज्ञान कांग्रेस पर ही करने की जरूरत है, जिससे अगली पुलिस विज्ञान कांग्रेस कैसी हो, किस प्रकार की हो, कैसे ज्यादा उपयोगी हो। कोई भी पद्धति 50 साल तक चलती है तो वो काल बाह्य हो जाती है। चिरंजीव कुछ नहीं होता है। 50 साल में परिवर्तन नहीं हुआ ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं मानता हूं कि बीपीआरएनडी का काम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं गृह मंत्री बनने के बाद बीपीआरएनडी पर विशेष ध्यान मैंने खुद भी दिया है। परंतु पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो समय उचित परिवर्तन होना चाहिए, कार्य पद्धति में, उद्देश्यों में और सबको साथ लेने के बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन, जो निर्णय होते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन,
इसमें कहीं ना कहीं हम पीछे पड़े हैं। और अगर इसको हम नए सिरे से नहीं सोचते हैं तो वो सज्जन का जो बयान था, एक ग्रॉस स्टेटमेंट था, शायद हम उसको सच साबित कर देंगे। तो मेरा सबसे पहले तो आग्रह है कि इसके पूरे स्वरूप पर हमने पुनः विचार करना चाहिए। आने वाली समय की चुनौतियों को समझे बगैर हमारा जो प्लानिंग होता है वो कभी सफल नहीं होता है। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये 10 साल में भारत विश्व का नेतृत्व हर क्षेत्र में करने के लिए आगे बढ़ रहा है। चाहे अर्थतंत्र की तालिका हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रिसर्च और डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो और व्यापार की बात हो। हर क्षेत्र में इस 10 वर्ष ने भारत ने कई दशकों की कमियों को पूरा कर कर आगे बढ़ने के लिए कदम भी उठाया है और हमें सफलता भी मिली। और मैं मानता हूं इसके कारण हमारी चुनौतियां कम नहीं होती है, बढ़ती है। क्योंकि कोई भी व्यवस्था में जब आप आगे बढ़ते हो तो किसी न किसी का स्थान लोगे, रेजिस्टेंस जरूर आएगा। और वो रेजिस्टेंस को आपने एनालिसिस कर कर हमें आगे बढ़ना। कुछ आश्चर्यजनक सफलताएं हमने प्राप्त की। 11वें नंबर पर हमारा अर्थतंत्र था, हम 5वें नंबर पर ले आए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 अप्रैल 2028 के पहले हम दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे। दुनिया के किसी भी चुनाव का विश्लेषण करने वाले पंडित से बात करते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि 97 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं का वोटिंग कोई गड़बड़ के बगैर हो गया और सिर्फ 16 बूथों के अंदर पुनः मतदान हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने ऐसे देश भी देखे हैं जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत आगे होते हैं और महीनों तक उनके परिणाम घोषित नहीं होते। हमारे यहां 7 बजे मत गिनती शुरू हुई और 1 बजे परिणाम घोषित हो जाता है। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा है, जहां उन्होंने गांधीनगर डाक टिकट प्रदर्शनी फिला विस्टा 2024 का उद्घाटन किया। साथ ही दांडी कुटीर संग्रहालय का दौरा किया। इस प्रदर्शनी में दुर्लभ और स्मारक टिकटों का संग्रह प्रदर्शित किया गया, जो कि पूरे क्षेत्र से डाक टिकट संग्रहकर्ताओं और उत्साही लोगों को आकर्षित करेगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में पुलिसिंग और सार्वजनिक सुरक्षा में प्रगति पर चर्चा करने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारी, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आए। और वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयी एथलेटिक्स अंडर 17 बालक बालिका प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन शुरू हुआ। तो वहीं गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में कराया जा रहा है। लोक भवन में उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा, वित्त एवं गृह के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने उक्त प्रतियोगिता के लोगो, शुभंकर एवं ट्रॉफी का अनावरण किया। करा रहे हैं उसके लिए है। इसके अलावा हम लोगों ने एक और इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि बच्चियों को केवल पढ़ाने के अलावा स्किलिंग और स्पोर्ट्स, इन दो पे हम लोग काफी ध्यान दे रहे हैं। आप लोग जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत जोर रहता है इन दोनों, पढ़ाई के अलावा स्किलिंग पे
ताकि पढ़ने लिखने के बाद वो स्किल्ड हो करके अच्छे नागरिक बने, कंट्रीब्यूशन करें। जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की एक संकल्प लिया गया है, उसमें हम अच्छे बच्चे दे पाएं। और खेल पे से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष लगाव है। आप देखते हैं वो कितना प्रोत्साहन देते हैं। बजट इस बार बढ़ाया गया है और हम लोगों ने माध्यमिक में एक स्पोर्ट्स फॉर स्कूल्स कार्यक्रम शुरू किया है और इसमें अभी तक बेसिक शिक्षा के 18,500 विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा के 12,000 और कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय हैं वो सभी 733, उनके लगभग 2,08,000 विद्यार्थियों को हम लोगों ने इसमें जोड़ा है। और इसमें हम लोग 3-4 चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि अगर खेलों को बढ़ावा देना है तो उसके लिए एक तो बच्चों को प्रोत्साहित करना होगा, उनको उसका इक्विपमेंट देना होगा। अगर आप फुटबॉल प्रोत्साहित कर रहे हैं तो उनके पास फुटबॉल होना चाहिए, उनको एक ग्राउंड होना चाहिए। तो हम लोग जो पंचायत राज विभाग है, ग्राम विकास विभाग है, उनके साथ मिल करके ज्यादा से ज्यादा उनके लिए प्लेग्राउंड्स डेवलप करा रहे हैं, ताकि बच्चों को स्कूल में या स्कूल के आसपास एक प्लेग्राउंड मिल सके। उनके लिए कोच होना चाहिए और अगर हम कोच अलग से नहीं दे पा रहे हैं तो हम उनके जो टीचर्स हैं, जो इच्छुक हैं, जो युवा हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, उनकी अच्छी ट्रेनिंग करा करके उन बच्चियों के लिए हम अच्छे कोचेज उपलब्ध कराएं, ताकि वो उनकी कम से कम वार्म अप कैसे करते हैं, खेल कैसे सीखते हैं और उनको ऑडियो विजुअल माध्यम से ट्रेन कर पाएं अपने स्कूल में और एक्सपर्ट्स को बुला करके उनको करा पाएं। और उनको ये तो 3 चीजें हो गई। चौथी चीज है उनको ज्यादा से ज्यादा हम कॉम्पिटिशन्स उपलब्ध कराएं, क्योंकि बच्चा जब तक खेलेगा नहीं, प्रतिभाग नहीं करेगा कॉम्पिटिशन्स में, तब तक वो उसका स्किल शार्पन नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर मंडल स्तर पे और फिर राज्य स्तर पे और फिर राष्ट्रीय स्तर पे इनकी प्रतिभागिता कराएं। तो जितना उनको ज्यादा मौका मिलेगा, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे दूसरे स्टेट्स के, उनके साथ वो कम्पीट करेंगे, अपनी कमियां समझेंगे, ज्यादा एक्सपर्ट होंगे, दूसरे स्टेट्स में जाएंगे, दूसरे स्टेट का कल्चर सीखेंगे, बच्चों के साथ आदान प्रदान करेंगे, उनकी एक जनरल अवेयरनेस बढ़ेगी और गेम्स में और पढ़ाई में कॉम्पिटेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और वो फिर नेशनल लेवल तक जाएंगे और अगर बहुत अच्छे हैं तो फिर इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे। आपको मैं ये बता दूं कि SGFI के माध्यम से जो इंटरनेशनल स्कूल फेडरेशन है वो भी कराता है। इंटरनेशनली हर एक राष्ट्र में ये गेम होते हैं, वहां पे हमारे बच्चे SGFI बेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह